last lecture we have started with this introduction to analytical technique, ठीक है, and before that, ठीक है, we have solved some MCQs, ठीक है ना, right? So I think by now, ठीक है, we are almost, I think 40 to 50% thorough with the chapter number 1, that is some basic concept, ठीक है, as far as solving concerned and right now. And today we are going to learn some new concepts or new formulas जिससे आपको डेसिमल के जो कैलकुलेशंस है, ठीक है, you will be getting an understanding about those calculations, ठीक है. So we have done this part about analytical techniques, ठीक है. So analytical chemistry is of two types, ठीक है. क्या क्या है? Quantitative and qualitative, ठीक है. So in quantitative analytical techniques, what we do, we understand कि how much percentage or we can say the quantity of the known elements are present, ठीक है. So इसमें आता है percentage weight by weight, percentage volume by volume, ठीक है, number of moles, molarity, mole fraction, ठीक है. We have already seen this part, ठीक है. इस चैप्टर में वापस रिवाइज करेंगे, ठीक है. Then, ठीक है, qualitative, ठीक है, we do the part of an which elements are present or which elements are absent in a given compound or a mixture, ठीक है. Then this was the definition for the analytical chemistry, ठीक है. So when I say and part of an analytical chemistry, ठीक है, it's a branch of chemistry which deals with the study of separation, identification, qualitative and quantitative determination of the composition of different substances is called as analytical chemistry. So these are the four applications of analytical chemistry. So कौन से applications हैं, ठीक है. First is agricultural, second क्या होगा forensic, third is in industry and the fourth is in a mechanical engineering or engineering any aspect, ठीक है. Now going for the next, ठीक है, on this concept, ठीक है, हमने देखा था कि analytical chemistry के total techniques कितने हैं. The first is classical methods, ठीक है, second है wet methods and latest which we are learning today कौन से है, that is modern equipments और modern instrumental methods, ठीक है. So by the time आप अपना ये अभी आपका academic education चल रहा है ना, so school and 11-12 are your academic education, ठीक है. इसके बाद आप अलग अलग फील्ड में प्रोफेशनल एजुकेशन में जाओगे. Some of you become an medical practitioners, some of may go for NDA, some of you may go for an different streams of an engineering, whichever stream you choose, ठीक है. The foremost concept ये है, you should be thorough with a modern day analytical techniques, ठीक है. अभी modern day analytical techniques मतलब क्या? For example, पहले यहाँ पे white board होता था, उसके पहले था ब्लैक बोर्ड, ठीक है. सो इम्प्रूव फ्रॉम एन ब्लैक बोर्ड टू वाइट बोर्ड, वाइट बोर्ड से भी क्या आ गया डिजिटल बोर्ड, ठीक है. नाउ आफ्टर दिस, ठीक है, राइट, देयर मे बी समथिंग लाइक एन वर्चुअल एआई, ठीक है, वेयर यू मे एबल टू सी द थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स, ठीक है. सो सेम वे एनालिटिकल टेक्निक्स में भी जहाँ पे पहले क्लासिकल मेथड्स में, ठीक है, क्लासिकल में हमने देखा वॉल्यूमेट्रिक था, ग्राविमेट्रिक था, ठीक है. सो इसमें हमें क्या होता है, टाइम लगता था, जैसे अराउंड 5 to 6 आवर्स एक या दो एलिमेंट को टेस्ट करने के लिए, ठीक है. नाउ द सेम एलिमेंट्स, ठीक है, विद अ वेट केमिकल मेथड्स यू कैन डिटेक्ट इन लेट्स एन आवर और सो, ठीक है, एक घंटे करीब वेट मेथड्स को लगता है, ठीक है. ऑन द कॉन्ट्ररी जो मॉडर्न इंस्ट्रूमेंटल मेथड्स है लाइक स्पेक्ट्रोमेट्री, ठीक है, उसमें ना ही आपको यू कैन गेट द एनालिसिस ऑफ एन एलिमेंट्स, मतलब कौन से एलिमेंट्स है, बट एट द सेम टाइम उसका क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन भी, मतलब क्वालिटेटिव भी एंड क्वांटिटेटिव एट द टाइम, ठीक है. व्हेन आई यूज्ड टू वर्क विद वन कंपनी, इसको फाउंड्री बोलते हैं, यू माइट नॉट बी अवेयर. फाउंड्री पता है, फाउंड्री नाम सुना है, फाउंड्री क्या होता है फाउंड्री में, हाँ पता है. फाउंड्रीज में हमारे मेटल के अलॉयज होते हैं ना, फॉर एग्जांपल दिस वन, ठीक है, दिस इज अ टाइप ऑफ एन आयरन, ठीक है. इसके अंदर थोड़ा सा कार्बन डाल के, ठीक है, इट हैज बीन मेड लाइक अ लिटिल बिट फ्लेक्सिबल, ठीक है, बेंड होता है, ठीक है. फिर टाइप ऑफ कास्ट आयरन होते हैं इसको, ठीक है. सो ये जिस कंपनी में बनते हैं, वेयर आयरन का स्क्रैप लेते हैं, उसके अंदर कार्बन डाल के मेल्ट करते हैं एंड देन दे एनालाइज. सो फॉर ऑलमोस्ट 4-5 years I have worked on this, ठीक है. सो मशीन आता है स्पेक्ट्रोमीटर,
ठीक है। यू हैव टू जस्ट टेक अ पीस ऑफ दिस, ठीक है, डायरेक्टली पीस लेना है, ग्राइंडिंग करना है ताकि ऊपर का पूरा लेयर निकल जाए। यू हैव टू कीप इट ऑन अ मशीन, उसके यहाँ पे एक रॉड होता है टंगस्टन का, वो स्पार्क क्रिएट करता है, एंड इन दैट स्पार्क इट कैन एनालाइज 14 एलिमेंट्स इन विदिन 10 सेकेंड्स, मतलब 10 सेकेंड स्पार्क चलेगा लाइक दिस, और फिर सीधा आपकी स्क्रीन पे यू विल गेट द रिजल्ट। इट कंटेन्स कार्बन 3.2%, आयरन 95%, बाकी के एलिमेंट सो एंड सो, ठीक है। नॉट ओनली फॉर दिस, ठीक है, दैट नॉब जो ब्रास से बना हुआ है, ठीक है, राइट, इवन दैट कैन बी एनालाइज्ड यूजिंग a spectrometer, ठीक है। सो फ्रॉम अ डे, ठीक है, टू एन आवर टू a new methods that analyze it in within seconds, ठीक है। So this is what we are going to advance further in this chapter, but not at this level, ठीक है। आपको जब आप प्रोफेशनल इंजीनियरिंग चालू करोगे तो आपको स्पेक्ट्रोमीटर वगैरह सब आएगा, ठीक है। नाउ गोइंग फॉर द नेक्स्ट, व्हाट इज एनालिसिस, ठीक है। So this is the definition for analysis. It procedure to carry out on a small sample of the material to be tested and not on the entire bulk. तो आपको definitely there will be a question on what is meant by sample, ठीक है। तो sample is the small portion of the bulk material, ठीक है, which is used or which represents the bulk material as a whole, ठीक है। तो ये definition बहुत जरूरी है। I hope सबके पास है, ये लिखा हुआ है, हाँ, yes, others लिखा है ना, लास्ट आई थिंक किसी पिछले लेक्चर में लिखा हुआ होगा, जस्ट चेक करना, ठीक है, सैंपल का, ठीक है। अगर नहीं तो एक सेंटेंस से क्विकली लिख दो, ठीक है। सो स्मॉल पोर्शन ऑफ बल्क मटेरियल, राइट डाउन आई विल टेक इट टू यू, अ स्मॉल पोर्शन ऑफ बल्क मटेरियल, स्मॉल पोर्शन ऑफ बल्क मटेरियल which represent a small portion of bulk material which represent all the properties of the bulk material, which represent all the properties of the bulk materials is termed as samples, is termed as samples, ठीक है, is termed as sample। बस इतना ही काफ़ी है, ठीक है, राइट, ओके। और ये आपके इंफॉर्मेशन के लिए है, ठीक है। अगर आपका सैंपल कुछ ग्राम में है, 2 से 3 ग्राम, या कुछ ml में है, तो सेमी माइक्रो एनालिसिस। अभी सेमी माइक्रो एनालिसिस दोनों टाइप का होता है, जैसे सेमी माइक्रो क्वालिटेटिव एंड सेमी माइक्रो क्वांटिटेटिव, ठीक है। सो ये है, ठीक है, सेमी माइक्रो क्वांटिटेटिव मेथड और क्वालिटेटिव मेथड, दिस बोथ वी हैव सीन दिस ऑलरेडी, ठीक है, राइट। सो नाउ लेट्स मूव फॉर द नेक्स्ट। तो क्या लिखिए, ये लिखने की जरूरत मतलब उतनी नहीं है, कीपिंग दिस, ठीक है, बाद में आपको, क्योंकि सेम माइक्रो अभी आपको प्रैक्टिकल में भी नहीं है, ठीक है, राइट। सो वी विल नॉट इंटरेस्ट विद दैट। अभी आपके 11th में सिर्फ वॉल्यूमेट्रिक एस्टिमेशन होगा। वॉल्यूमेट्रिक एस्टिमेशन मतलब, ठीक है, राइट, दिस वन, ओके, व्हिच वी हैव सीन, राइट। सो इन दिस केस दिस इज द टाइट्रेशन, इसको बोलते हैं वॉल्यूमेट्रिक एस्टिमेशन, ठीक है, वी ऑलरेडी सीन दिस, ओके। Then this was a part of our gravimetric estimation, ठीक है, where we have treated the nickel ion with the DMG complex, वो nickel DMG complex, उसको precipitate किया, filter किया, wash किया और bake किया, ठीक है। This is the precipitation technique, ठीक है। ये जो लास्ट मेथड है ना, जहाँ पे ये वेट प्रेसिपिटेट है, ग्रेविमेट्रिक में अक्सर, ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम इस प्रेसिपिटेट को हम फर्नेस में डालते हैं और पुट इनटू एन ओवन, ठीक है। फर्नेस और ओवन में फर्क है, फर्नेस क्या करेगा, पूरा ऐश कर देगा, ओवन ड्राई करेगा, ठीक है। सो एक बड़ा ओवन होता है ऑलमोस्ट ऑफ 40 to 50 लीटर्स, ठीक है, उसके अंदर स्पेसिफिक को रखते हैं एट 120 डिग्री सेल्सियस, पानी तो 100 डिग्री सेल्सियस इवापोरेट होता है, ठीक है। हार्डली यू कीप इट फॉर 10 मिनट्स, पूरा आपको ड्राई होकर प्रेसिपिटेट बाहर आ जाता है, ठीक है। वो प्रेसिपिटेट का वेट लेके, ठीक है, यहाँ पे जो ये वेट है इसका, ठीक है, और ड्राई करोगे तो हार्डली इसका वेट आएगा 1/4 से भी कम आएगा, ठीक है। 8.24 है, वो 2.12 वगैरह आ जाएगा, ठीक है। एंड देन वी डू द कैलकुलेशन और पता करते हैं कितने निकल आयंस उस सॉल्यूशन में थे, ठीक है। दिस इज ग्रेविमेट्रिक। देन, ठीक है, नेक्स्ट दिस इज द पार्ट ऑफ एन प्रेसिपिटेशन, ये क्वालिटेटिव के लिए है, क्वांटिटेटिव के लिए नहीं, ओके।
the sulfate is formed. सो यहाँ पे जो क्लियर सोल्यूशन था, दैट सोल्यूशन वाज ऑफ सोडियम सल्फेट, उसके अंदर उन्होंने क्या किया, बेरियम क्लोराइड का सोल्यूशन डाल दिया. सो बेरियम आयंस रिएक्टेड विद द सल्फेट आयंस फ्रॉम द सोडियम सल्फेट टू फॉर्म द बेरियम सल्फेट. बेरियम सल्फेट का प्रेसिपिटेट इनसॉल्युबल है, ठीक है. जो व्हाइट बना है दैट इज बेरियम सल्फेट, और ये नीचे दिख रहा है दैट इज अनरिएक्टेड सोडियम सल्फेट, और इसके अंदर होंगे कुछ सोडियम क्लोराइड आयंस, ठीक है. बिकॉज ये जो रिएक्शन है इट इज हैपनिंग लाइक दिस, ठीक है. देयर इज एन सोडियम सल्फेट Na2SO4, ठीक है, राइट. दिस इज aqueous, राइट. इट इज रिएक्टिंग विद a barium chloride solution BaCl2 aqueous to get us an barium sulfate BaSO4 that is solid plus an NaCl that is twice, ठीक है. it is aqueous. so ये है हमारा precipitate. precipitate को normally we show it with the downward arrow, ठीक है. अगर किसी मॉलिक्यूल के सामने डाउनवर्ड एरो बनाया है दैट मीन्स उसका मतलब ये है इट इज गेटिंग प्रेसिपिटेटेड, ठीक है. दिस आर द स्मॉल स्मॉल नुआंसेस जो आपको केमिकल रिएक्शंस में ऑब्जर्व करने होते हैं. इज इट क्लियर? ठीक है. नाउ लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट, ठीक है. सो दिस वाज द डिस्टिलेशन टेक्निक, हमने ऑलरेडी देखा हुआ है, ठीक है. देन दिस वाज अ पार्ट व्हिच वी हैव, आई थिंक वी हैव सीन दिस ना, ये हुआ था ना. सो केमिकल मेथड्स में, ठीक है, द केमिकल मेथड्स ऑफ क्वालिटी एनालिसिस इन्वॉल्व्स टू मेथड्स. वन इज अ ड्राई टेस्ट और सेकंड होता है वेट टेस्ट. आई डाउट ये नहीं हुआ था शायद, हुआ था, ठीक है. सो आई जस्ट रिपीट इट वंस, ठीक है. सो ड्राई टेस्ट में वी डू द प्रिलिमिनरी टेस्ट. प्रिलिमिनरी टेस्ट में हम उसका ऑब्जर्व करते हैं कलर, ठीक है, विच कलर द सॉल्ट्स आर, ठीक है. देन वी गो फॉर ऑर्डर. अभी नॉर्मली जो एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है, विच हैज गॉट एन एरोमा, ए स्मेल, ठीक है, दे आर ऑब्जर्व्ड बाय दिस स्मेल टेक्निक, ठीक है. अब एग्जांपल क्या होगा, कुछ भी हो सकता है. घर में हम नाफ्थलीन बॉल्स यूज करते हैं व्हाइट कलर के, ठीक है, दैट आर एरोमेटिक, ठीक है. नाफ्थलीन एक मॉलिक्यूल है, ठीक है, उसका स्ट्रक्चर ऐसे है, ठीक है. बेंजीन तो आपको पता है अभी, यस और नो? बेंजीन पता है, ये बेंजीन का भाई है, ठीक है, फ्यूज, इसको बोलते हैं नाफ्थलीन, ठीक है. इसका एक कैरेक्टरिस्टिक एरोमा होता है बाय व्हिच द इंसेक्ट्स एंड द रिपेलेंट्स दे मूव अवे, ठीक है. फिर नाफ्थलीन के जैसे एक और घर में चीज़ है दैट इज कैम्फर. नाफ्थलीन अगर आप खोल कर रखो तो टूट जाता है ना, सेम वे कैम्फर, ठीक है. सो कैम्फर का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऐसे है कुछ, ठीक है. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एन कैम्फर, ओके, लाइक दिस, ठीक है. ओके, सो these are some of the compounds which are identified by the order. आप स्मेल लेके आप डिटेक्ट कर सकते हो कि दिस इज एरोमेटिक स्मेल, तो एरोमेटिक कंपाउंड होगा बेंजीन, नाफ्थलीन, या फिर घर का जो फिनाइल होता है दैट आर ऑल एरोमेटिक. देन नेचर, नेचर में हम क्वालिटेटिव में, ठीक है, वी सी कि वेदर वो क्रिस्टलाइन है कि अमॉर्फस है. अभी क्रिस्टलाइन अमॉर्फस में फ़र्क क्या होगा. हमारे घर का सॉल्ट, ठीक है, आप देखोगे थोड़ा क्रिस्टल क्रिस्टल होते हैं ना, राइट. शुगर क्रिस्टलाइन होता है, ठीक है. बट उसी शुगर का पाउडर करो, ठीक है, राइट, वी गेट द अमॉर्फस पाउडर, सो क्रिस्टलाइन नेचर नहीं होता, ठीक है. या फिर टैल्कम पाउडर जो नॉर्मली हम फेस पे लगाते हैं, अमॉर्फस होता है, ठीक है, उसके कुछ क्रिस्टल्स नहीं होते, ठीक है. सो वो नेचर देखना बहुत जरूरी है, बिकॉज वंस दिस नेचर इज आइडेंटिफाइड देन वी गो फॉर द नेक्स्ट टेस्ट दैट इज हीटिंग इन अ ड्राई टेस्ट ट्यूब. अब ये आपको पता नहीं होगा, ठीक है, राइट. प्रैक्टिकल चालू है नहीं, ठीक है. सो हीटिंग इन अ ड्राई टेस्ट ट्यूब मीन्स व्हाट वी डू, हम लेते हैं फर्स्ट एक टेस्ट ट्यूब, ठीक है, राइट. एंड देन इन दिस टेस्ट ट्यूब, ठीक है, वी होल्ड इट बाय यूजिंग द पेयर ऑफ टर्म्स, ओके, राइट. एंड वी पुट सम क्रिस्टल्स इन इट, ठीक है. आपको मिक्सचर दिया होगा उसको ले लेते हैं थोड़ा सा, हाफ अ स्पून, ठीक है. एंड डायरेक्टली वी पुट इट ऑन एन फ्लेम, ठीक है, इसको फ्लेम पे रखा जाता है, ठीक है. एंड व्हेन वी पुट इट ऑन द फ्लेम, ठीक है, देन वी ऑलमोस्ट पुट ऑफ एवरी अदर, फैन भी बंद कर देते हैं, ठीक है. एंड देन वी ट्राई टू हियर, ठीक है, वो फ्लेम पे रखने के बाद इज इट गिविंग एनी साउंड, ठीक है. सो आफ्टर 1 or 2 मिनट्स ये क्रैकलिंग साउंड देता है, जैसे पटाखे फूटते हैं ना वैसे, नॉट लाउड बट वेरी स्मॉल. होता क्या है, ठीक है, दैट दिस क्रिस्टल्स, ठीक है, राइट, जो कि मोस्टली बड़े लार्ज क्रिस्टल्स होते हैं, ठीक है, ऑन हीटिंग, ठीक है, दिस क्रिस्टल्स दे क्रैक ओपन, ठीक है, यहाँ से क्रैक हो जाएंगे, ठीक है. एंड दिस क्रिस्टल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ द 2 क्रिस्टल्स, मतलब आपको
ऐसे दो क्रिस्टल्स मिलेंगे, ठीक है, राइट। सो दिस इज नोन एज द पार्ट ऑफ ब्रेकिंग द लार्ज क्रिस्टल्स इनटू टू। और ये जब ब्रेक होते हैं, ठीक है, दे ब्रेक विद द लार्ज साउंड, क्रैकलिंग साउंड के साथ, ठीक है, ब्रेक हो जाते हैं, ठीक है, दैट इज नोन एज क्रैकलिंग साउंड। तो क्रिस्टल्स पे ऑब्जर्व करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो ये कंफर्म हो जाता है कि आपको कंपाउंड क्रिस्टलाइन है, ठीक है। ये क्यों जरूरी है? बिकॉज वंस इट इज क्रिस्टलाइन, फिर वो आगे वेट टेस्ट के लिए इजीली पॉसिबल होगा, बिकॉज क्रिस्टलाइन सॉलिड्स डिसॉल्व्स इन वाटर, ठीक है। सो आपको अगर पता नहीं है आपका मतलब कंपाउंड क्या है, क्रिस्टलाइन है कि नॉन क्रिस्टलाइन है, ठीक है, तो उसको एक और तरीके से चेक कर सकते हैं। यू टेक अ टेस्ट ट्यूब, थोड़ा सा कंपाउंड डालो, ऊपर से पानी डालो, ठीक है, एंड शेक इट। अगर डिसॉल्व हो गया, दैट मीन्स 99% द केस द कंपाउंड इज क्रिस्टलाइन, ठीक है। इज इट क्लियर? ओके, राइट। सो ये है ड्राई टेस्ट एंड वेट टेस्ट। ये आपने लिखा था क्या लास्ट टाइम? बहुत है ना। सो लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट, ठीक है। सो वेट टेस्ट में ये जो आपको दिख रहा है, दिस इज अ टेक्निक नोन एज प्रेसिपिटेशन, ठीक है। अब प्रेसिपिटेशन हमने ऑलरेडी देखा था बेरियम सल्फेट का। सो वैसे ही हर एक एलिमेंट के लिए कुछ रिएक्शन दिए हुए हैं। वी डोंट रिमेंबर नाउ, बस हमें पता करना है कि ड्राई टेस्ट क्या होता है और वेट टेस्ट क्या होता है, ठीक है। लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट। सो दिस इज क्वालिटी एनालिसिस ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है। सो क्वालिटी एनालिसिस ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड इन्वॉल्व्स टू मेजर टेस्ट। एक होता है डिटरमाइनिंग द फंक्शनल ग्रुप और दूसरा होता है डिटरमिनेशन ऑफ मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। अभी ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है? व्हाट यू नो अबाउट द ऑर्गेनिक कंपाउंड? अच्छा, कंपाउंड दो टाइप का कितना होता है, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक, दोनों में अंतर क्या है? यस, दोनों में अंतर क्या है? हाँ, एनीवन? यस, करेक्ट, ठीक है। सो जब हम बात करते हैं इनऑर्गेनिक, ठीक है, और ऑर्गेनिक की, ठीक है, एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर नथिंग बट दिस आर कार्बन कंपाउंड्स, ठीक है, राइट। फिर इनको ऑर्गेनिक नाम क्यों दिया? कभी इसकी हिस्ट्री पता है? ऐसा कहते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो ब्रांच चालू हुआ केमिस्ट्री का, ठीक है, उसका कंसेप्ट यही था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड मतलब सारे कंपाउंड जो ऑब्टेन फ्रॉम द लिविंग बीइंग्स। अब पेड़ के क्या गए, आम तोड़ के लाया, आम में से आपको ग्लूकोज मिला, फ्रुक्टोज मिला, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज बोथ आर ऑर्गेनिक। व्हाई? बिकॉज वो नेचर से लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिले। हमारी बॉडी से यूरिया निकलता है, ठीक है। सो उन्होंने कहा यूरिया इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। सो व्हाटएवर कंपाउंड्स वी ऑब्टेन फ्रॉम द लिविंग बीइंग्स उनको बोला जाता है ऑर्गेनिक। इसके लिए वो ऑर्गेनिज्म से है ऑर्गेनिक। बाद में पता चला कि जरूरी नहीं है कि यूरिया ह्यूमन बॉडी में ही बने, ठीक है। यूरिया आप बाहर भी बना सकते हो टेस्ट ट्यूब में, ठीक है। सो देन later on it was modified that organic compounds are nothing but the compound which predominantly contains carbon, because हर ऑर्गेनिक कंपाउंड का बेस एलिमेंट था कार्बन, ठीक है। बाकी अदर एलिमेंट्स थे, सो दे आर मेड अप ऑफ कार्बन, ठीक है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड हेटेरो एलिमेंट लाइक नाइट्रोजन एंड सल्फर, ठीक है। ये होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। इनऑर्गेनिक कंपाउंड में दिस आर द कंपाउंड्स, ठीक है, of element other than carbon, compounds of elements other than carbon, ठीक है। सो आई होप अभी आपको ये तो कंफ्यूजन क्लियर हुआ होगा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड एंड एन एलिमेंट। हाउ यू डिफाइन कंपाउंड? यस बॉयज, कंपाउंड से डिफाइन करोगे? नहीं? हाँ, माइंड में क्या आ रहा है? एग्जाम्पल दे दो। अदर्स? नहीं? क्या हुआ? अब भूल गए वो चार्ट मैं दिया था वो, ये मुझे दो तीन बार हुआ है। यस, कम से कम 4-5 बार। अभी तो बताओ। हाँ, कोई मार्क्स नहीं काटूंगा। हाँ, यस, हाँ, जल्दी जल्दी बताओ क्या है, कंपाउंड्स क्या है? बी फ्री, एटलीस्ट आपको पता तो हो कि आप साइंस पढ़ रहे हो। हाँ,
यस, चलो कॉलेज में गए और पूछ लिया किसी प्लान में, ठीक है, राइट। चलो बताओ व्हाट इज कंपाउंड, ये 9th स्टैंडर्ड का वर्ड है। हाँ, करेक्ट, वेरी गुड, प्योर फॉर्म ऑफ मैटर। और उसका एक सेकंड लाइन भी है, यस, एनीवन अदर? हाँ, They are the pure form of matter with more than 2 or more substances. almost near to correct. They are made up of combination of more than, ठीक है, 2 or more than 2 elements of different types, ठीक है, in a fixed proportion by mass, ठीक है। एग्जाम्पल मैंने फिक्स एक ही दिया था, H2O, ठीक है, in the proportion of hydrogen to oxygen the ratio of 2:60, ठीक है, by mass, ठीक है। सो यहाँ पे इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में दिस आर द कंपाउंड्स ऑफ एलिमेंट्स अदर देन कार्बन। नाउ ये हो गया क्वालिटी एनालिसिस। अभी क्वालिटी एनालिसिस ऑफ इनऑर्गेनिक, सो नाउ लेट मी क्लियर योर दिस, व्हाट इज मीन बाय द डिटेक्शन ऑफ फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। अब ये फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, ठीक है। नाउ दिस पार्ट यू माइट हैव लर्नड इन चैप्टर नंबर 4 ऑफ योर 10th स्टैंडर्ड, ठीक है। याद है फंक्शनल ग्रुप का डेफिनेशन या कुछ एग्जांपल्स? वो हो गया मॉलिक्यूल, ठीक है, राइट। सी मैं आपका वो जो शार्प एंड है ना नॉलेज का, वो शार्प करना चाहता हूँ, ठीक है। तो जब हम बात करेंगे फंक्शनल ग्रुप की, आपके यहाँ से यू शुड नॉट बी इन स्ट्रेस, क्या मैं पढ़ते रहता नहीं, ठीक है, यू शुड बी इन जोन, नहीं, हाँ ये मुझे पता है, हाँ बोलो, एनी आंसर, डोंट फील शाय, हाँ कोई सही कोई गलत नहीं है यहाँ पे। कीटोन, नाइट्राइल और अच्छा, इसको डिफाइन कैसे करते हैं? हाउ यू डिफाइन अ फंक्शनल ग्रुप? आपको क्या लगता है क्या डेफिनेशन होना चाहिए इन योर वर्ड्स? हाँ, ये आएगा दरअसल, ठीक है, इन द पार्ट ऑफ एन इनऑर्गेनिक, नहीं ऑर्गेनिक में आएगा ये फंक्शनल ग्रुप, ठीक है ना, राइट। अभी हाउ यू डिफाइन अ फंक्शनल ग्रुप? अच्छा, एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। व्हाट आर द एग्जांपल्स फॉर फंक्शनल ग्रुप? हाँ, अगर मेरा मॉलिक्यूल है CH4, ठीक है, राइट, इस CH4 में अगर एक हाइड्रोजन मैंने निकाल दिया, ठीक है, एंड आई पुट लेट्स से Cl, ठीक है, तो Cl इज माय फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। इफ आई रिप्लेस दिस Cl विद लेट्स से ये मॉलिक्यूल है और उसके अंदर मैंने रख दिया OH, सो OH इज माय फंक्शनल ग्रुप, ठीक है, राइट। देन अगर मैंने OH को रिप्लेस किया, यस करो ना, ऑन करो, Like we, पता नहीं मुझे है क्या आ रही, वो डोर थोड़ा क्लोज करेगा, ठीक है। नाउ Cl हो गया, OH हो गया, ठीक है। देन अगर मैंने OH को रिप्लेस किया विद दिस CH3 COOH, ठीक है, ये हो गया फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। अभी आप मुझे बताओ इस चीज को आप डिफाइन कैसे करोगे, क्या आपको लग रहा है व्हाट इज फंक्शनल ग्रुप? देखो इन सिंपल वर्ड्स, इन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड व्हिच इज प्रेडोमिनेंटली मेड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, ठीक है, द प्रेजेंस ऑफ एटम्स, ठीक है, व्हिच आर अदर देन कार्बन एंड हाइड्रोजन, ठीक है, एंड इन पर्टिकुलर प्रोपोर्शन, जैसे क्लोरीन हो गया, ठीक है, ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन हो गया, ये कार्बन ऑक्सीजन हाइड्रोजन हो गया, ठीक है, which gives and particular characteristic to the molecule is known as functional group, ठीक है। So I'll write it down, ठीक है, these are atoms, ठीक है, और group of atoms, ठीक है, which give particular characteristic to a molecule are termed as functional groups, ठीक है।
अभी इसको डिटेक्ट कैसे करना है, ठीक है। लेट्स से आपके मॉलिक्यूल में है अल्कोहल, ठीक है, आपके मॉलिक्यूल में क्या है, अल्कोहल, दैट इज OH। सो आपने लिया इथेनॉल, ठीक है, मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ, और आई विल टेक इट एज R सिंगल बॉन्ड OH। हम अल्कोहल को ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अभी इस ग्रुप को आपको डिटेक्ट करना है, ठीक है, कि हाँ ये ग्रुप आपके मॉलिक्यूल में है। अब अगर आप इथेनॉल लोगे, इट लुक्स एग्जैक्टली लाइक वाटर, कोई विजुअल आइडेंटिफिकेशन है नहीं, ठीक है। सो व्हाट यू विल डू, यू विल टेक इट इन टेस्ट ट्यूब, ठीक है, और इस अल्कोहल के अंदर आप सबसे पहले डालोगे अनहाइड्रस ZnCl2, ठीक है। सो इसके अंदर आप डालोगे पहले, ठीक है, दैट इज अनहाइड्रस ZnCl2, ठीक है, ओके, मतलब बिना पानी वाला अमॉर्फस जिंक क्लोराइड का पाउडर, ठीक है। एंड देन ऑन द टॉप यू विल पास एन HCl गैस या फिर कॉन्सेंट्रेटेड HCl, ठीक है, मोस्टली इसके अंदर पास करते हैं हम HCl गैस, ठीक है। सो इसके अंदर यू विल ऐड एन HCl गैस, ठीक है। सो यू गेट द फॉर्मेशन ऑफ R single bond Cl plus H2O, ठीक है। सो दिस गिव्स अस फॉर्मेशन ऑफ एन अल्काइल हैलाइड, ठीक है। जैसे अल्काइल हैलाइड बना, जो आपका एक सिंगल लेयर था, आपको दो लेयर आ गए, ठीक है, राइट। नाउ दिस टू लेयर इंडिकेट्स दैट इसके अंदर अल्कोहलिक ग्रुप था, ठीक है। सो लाइक दिस देयर आर मेनी टेस्ट, ठीक है, इसमें हम अलग अलग फंक्शनल ग्रुप डिटेक्ट करते हैं, ठीक है। एक और चीज, ठीक है, अगर मान लो, ठीक है, यू हैव गॉट दिस ग्रुप RCOH, कौन सा ग्रुप है ये, हाँ, COH को हम क्या बोलते हैं, नहीं, आर्डियाडिक नहीं है, COH क्या होता है, हाँ, अल्कोहल तो हो गया ऊपर वाला OH, कार्बोक्सिलिक, ठीक है। अगर कार्बोक्सिलिक ग्रुप को टेस्ट करना है, ठीक है, यू हैव टेक दैट अगेन सेम ट्रांसफर होता है पानी की तरह, ठीक है, यू हैव टेक इट लिटिल इन टेस्ट ट्यूब और उसके अंदर आप डालोगे सल्फ्यूरिक एसिड कॉन्सेंट्रेटेड, ठीक है, ऊपर से डालोगे लिटिल अमाउंट ऑफ अल्कोहल, ठीक है, एंड देन यू विल स्मेल इट, ठीक है। तो जब आप स्मेल करोगे, अगर आपको फ्रूटी स्मेल आया, ठीक है, जैसे एप्पल का स्मेल होता है, बनाना का स्मेल होता है, और एनी फ्रूट का स्मेल नॉर्मली, ठीक है, तो फ्रूटी स्मेल आया, दैट मीन्स इट इज कंफर्म यू हैव गॉट कार्बोक्सिलिक एसिड। रिएक्शन कुछ ऐसे होता है, ठीक है, RCOH with R-COH in the presence of and concentrated H2SO4, ठीक है, आपको मिलेगा R सिंगल बॉन्ड C OOR डैश, ठीक है, प्लस H2O, ठीक है, यहाँ पे आपको मिलेंगे, ठीक है, here you get a turbidity, ठीक है, राइट, और यहाँ पे आपको मिलेगा, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ एन फ्रूटी स्मेल, ठीक है। तो ये दोनों भी रिएक्शन आपको 12th में है और आपको याद रखने हैं फॉर योर एंट्रेंस, ठीक है, राइट। दिस इज वन ऑफ दोस टू रिएक्शंस जो हमें डिटेक्शन के लिए यूज होने हैं, गेटिंग माय पॉइंट, ठीक है। सो ये है डिटेक्शन ऑफ फंक्शनल ग्रुप, लाइक देयर आर मेनी, ठीक है, अल्डेहाइड के लिए सिल्वर मिरर टेस्ट है, कीटोनिक के लिए देयर इज एन मेसिटिक ऑक्साइड टेस्ट एंड अदर्स। देन नेक्स्ट है डिटरमिनेशन ऑफ मेल्टिंग पॉइंट। R इज एन अल्काइल ग्रुप, वो हम एक बार स्ट्रक्चर ऑफ एटम होने दो, ठीक है, देन द चैप्टर विल स्टार्ट इज हाइड्रोकार्बन, उसमें आपको R के बारे में पूरा पता चलेगा। R यानी कि जस्ट मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे मिथाइल दिख रहा है ना, इसको जर्नल रिप्रेजेंटेशन है R, ठीक है। अगर मान लो यहाँ पे मैंने इथाइल लिया होता CH3CH2, तो इसको भी जर्नल रिप्रेजेंटेशन है R, ठीक है। सो R मतलब एनी अल्काइल ग्रुप, अल्केन में से एक हाइड्रोजन उठा दो, यू विल गेट द अल्काइल ग्रुप, ठीक है। सो अल्केन का रिप्रेजेंटेशन होता है एज एन R-H, ये है अल्केन, ठीक है। शायद ये भी आपको रहा होगा इन योर 10th स्टैंडर्ड, ठीक है, राइट, बट ठीक है, वो स्कूल लाइफ में लेवल में था, ठीक है, उतना याद नहीं रहेगा, बट यहाँ पे पूरा डिटेल में है इसके बारे में, इज इट क्लियर, ठीक है। सो जस्ट गिव दिस हेडिंग क्वाड्रेटिक एनालिसिस, ये लिखा है क्या, आई डोंट थिंक, इसको लिखो पहले, ठीक है, क्वाड्रेटिक एनालिसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, और भी
यहाँ पे एक वर्ड ऐड कर रहा हूँ मैं, ठीक है, दैट इज प्रॉपर्टीज। ठीक है, प्रॉपर्टीज में दोनों आएंगे, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, ये और थोड़ा सा मेंशन करके रख देना। ठीक है, दिस विल बी द डेफिनेशन फॉर द फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, होगा एग्जाम्पल फॉर डिटेक्शन ऑफ फंक्शनल ग्रुप। Done? This may be the same or the different alkyl group. ठीक है, so you can mention it like this: R may be equal to R dash or R may not be equal to R dash. ठीक है, राइट, मतलब वो सेम अल्काइल ग्रुप हो सकते हैं, लाइक मिथाइल मिथाइल, या एक मिथाइल और एक इथाइल हो सकता है, लाइक दैट। ठीक है, डन। हाँ, कैन मूव अहेड। ओके, हाँ, टर्बिडिटी मतलब जस्ट ऑयल इन वाटर को अगर शेक करेंगे आप तो आपको एक टर्बिडिटी आ जाती है। ठीक है, और बेस्ट में, ठीक है, अगर हम लाइट ऑफ करेंगे तो जो आपको हेजीनेस दिखता है ना, दैट इज टर्बिडिटी। ठीक है, राइट। सो टर्बिडिटी अगर आप डिस्टैंड करते हो, you get the two layers, so it is like two immiscible liquids, ठीक है, shaken together, ठीक है, उसको भी turbidity। okay, can I move on next? हो गया? हाँ? Now quality analysis of an inorganic compound, ठीक है, it involves determination and confirmation of, ठीक है, cationic species and anionic species।
normally an inorganic compound is considered as an ionic compound. ठीक है, so ions are made up two types, एक होता है cations, दूसरा होता है anions. ठीक है, so an cationic species is known as a basic radical and anionic species is known as acidic radical. ठीक है, अभी इसका एग्जांपल क्या होगा? ठीक है, let's say, ठीक है, if you have got an inorganic compound, ठीक है, so अगर आपके पास आपको एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है, दिया हुआ है, ठीक है, so I'll take one example of an inorganic compound. Let's say आपको दिया है for example an NH4Cl, ठीक है, ये आपको एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड दिया है. अभी NH4Cl में कैटायन क्या है बताओ? हाँ, कैटायन मतलब पॉजिटिव आयन. ठीक है, so this NH4Cl, ठीक है, it will dissociate to form NH4 plus plus Cl minus. अब NH4 plus क्या हो गया मेरा? It is an cation. ठीक है, right? So to detect the cation, ठीक है, अभी आप क्या करोगे? इसका एक टेस्ट होता है. ठीक है, what you do? आप वो सॉल्यूशन लेते हो because अमोनियम क्लोराइड, ठीक है, it will dissociate to form NH4 plus and Cl minus in the presence of and water. ठीक है, अगर आप उसके अंदर पानी डालोगे तो सेपरेट हो जाएंगे. ठीक है, अब इसके अंदर उस सॉल्यूशन में आपका अमोनियम भी है और Cl माइनस भी है. द फर्स्ट थिंग व्हाट यू डू इज, ठीक है, यू ब्रिंग एन ग्लास रॉड, ठीक है, डिप, ठीक है, इन HCl, ठीक है, नियर द माउथ ऑफ टेस्ट ट्यूब एंड हीट. ठीक है, आपको मिलेंगे डेंस वाइट फ्यूम्स, ठीक है, ऑन ग्लास रॉड. ओके, तो ये हो जाएगा आपका डिटेक्शन ऑफ अमोनियम आयंस. मतलब वो टेस्ट ट्यूब में, ठीक है, यू टेक दैट सॉल्यूशन, ठीक है, राइट लाइक दिस. ओके, ये आपका टेस्ट ट्यूब में सॉल्यूशन होगा. यू स्टार्ट हीटिंग इट, ठीक है, एंड हीटिंग करते करते क्या करोगे आप? ठीक है, यू विल गेट अ ग्लास रॉड दैट इज डिप्ड इन एन HCl. ठीक है, नाउ द मोमेंट यहाँ से अमोनिया बाहर निकलेगा, ठीक है, यहाँ पे आएगा, इट विल गिव आउट द डेंस वाइट फ्यूम्स. ठीक है, पूरे ग्लास रॉड से. ठीक है, दैट इज अ टेस्ट कि हाँ इसमें अमोनिया था. ठीक है, राइट. ये आपको आगे चल के प्रैक्टिकल्स भी करवाएंगे. मैं आपको अभी से एक एक एग्जांपल डाल के वो क्लियर करवाऊँ तो यू कैन रिमेंबर कि हमने ऐसे कुछ देखा था. ठीक है, राइट. देन अभी दूसरा क्या बचा? Cl माइनस. ठीक है, तो डिटेक्ट द Cl माइनस, दैट इज इट इज एन एनायन. ठीक है, सो टू डिटेक्ट दिस एनायन हम क्या करेंगे? ठीक है, टू दिस टेस्ट ट्यूब, ठीक है, विल ऐड, ठीक है, एंड सॉल्यूशन ऑफ AgNO3. ठीक है, इसको बोलते हैं सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन. ठीक है, सो कुछ ऐसा हो जाता है रिएक्शन. ठीक है, AgNO3, ठीक है, प्लस Cl माइनस aqueous. ठीक है, you get the formation of AgCl solid. ठीक है, प्लस NO3 माइनस. ठीक है, याद है हमने जैसे बेरियम सल्फाइड का प्रेसिपिटेट बनाया था, वैसे ही आपका टेस्ट ट्यूब में ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन रहेगा. ऊपर से आप एक और ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन डालोगे AgNO3 का. The moment you the AgNO3 touches that solution, you get a curdy white precipitate. Curdy white मतलब बिल्कुल कर्ड की तरह, दही की तरह प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है. सो दैट वाइट कलर इंडिकेट्स कि आपका AgCl बना है. अगर हैलोजन है इसके अंदर, मान लो ब्रोमीन है या आयोडीन है, तो आपको पर्टिकुलरली ब्राउन कलर का और येलो कलर का प्रेसिपिटेट आएगा. ठीक है, सो दिस इज हाउ वी डिटेक्ट द अनायन. अब ये स्पेसिफिक है फॉर दिस एग्जांपल. ठीक है, बट दिस आर द टू पार्ट फॉर डिटेक्टिंग एन इनऑर्गेनिक कंपाउंड. क्लियर है? ठीक है, जस्ट राइट इट डाउन दिस पार्ट.
ठीक है। हाँ, नॉर्मली जो कैटायनिक स्पीशीज होते हैं ना उनको बोलते हैं बेसिक रेडिकल, बिकॉज अभी देखो वहाँ पे अमोनियम है, वो हाइड्रोक्साइड कंबाइन होगा तो बेस बनेगा, ठीक है। वैसे कोई भी कैटायनिक स्पीशीज ले लो, Na+, NaOH बेसिक, फिर ले लो लिथियम LiOH बेसिक, पोटेशियम KOH बेसिक, फिर Mg+2 MgOH बेसिक, COH बेसिक। सो जो भी कैटायनिक स्पीशीज होती है दे रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म अ बेसिक रेडिकल। जो एनायनिक होंगे दैट इज नॉन मेटल, ठीक है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, सब HF, HCl, HBr, HI, सारे के सारे एसिड, ठीक है, राइट। फिर वहां से सल्फर ले लो H2S एसिडिक, ठीक है। सो जो नॉन मेटल्स होते हैं दे ऑलवेज फॉर्म द एसिडिक। कार्बन भी, कार्बन नॉन मेटल है, ठीक है, कार्बन एक एसिड बनाते हैं H2CO3 जो हम पीते हैं सॉफ्ट ड्रिंक में, ठीक है। सो दिस आर ऑल एनायनिक स्पीशीज एंड दे आर नोन एज एसिडिक रेडिकल, ठीक है। ठीक है, Zan, can I move for the next? Down. हो गया क्लियर? हो गया। Now let's move for the next. ठीक है, this is an chemical methods of सेमी माइक्रो क्वालिटेटिव एनालिसिस, ठीक है। मैंने याद है आपको बताया था अभी, सेमी माइक्रो एनालिसिस मतलब जब आपका सैंपल हो फ्यू ग्राम्स या फ्यू ml का, ठीक है। सो इन दैट केस इसमें अभी सब आपका थियोरेटिकल पार्ट है। दीज आर द लिस्ट ऑफ apparatus जो हम यूज करते हैं फॉर द सेमी माइक्रो क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव नहीं, क्या है ये क्वालिटेटिव, ठीक है। मतलब क्या करना है, क्वालिटेटिव मतलब डिटेक्ट करने हैं कौन से एलिमेंट्स हैं, मान लो कार्बन है कि नहीं, हाइड्रोजन है कि नहीं, ठीक है। देन सल्फर, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन्स, हाइड्रोजन्स में तीनों हाइड्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ठीक है। सो एंड लास्ट है फॉस्फोरस, ठीक है। सो दिस ऑल द एलिमेंट्स आर डिटेक्टेड बाय यूजिंग दिस apparatus, ठीक है। सो इसमें क्या क्या है देखना एंड विच विल बी रिक्वायर्ड टू अंडरस्टैंड, ठीक है। जो ऊपर आपको दिख रहा है इट इज नोन एज रबर बल्ब, ठीक है, राइट। ये आपको पिपेट के साथ यूज है। नॉर्मली व्हेन वी वर इन द कॉलेज हमें बोलते सीधा मुंह से सक करो, ठीक है, बट नॉट नाउ, ठीक है। यू हैव टू यूज अ बबलर, ठीक है। वो एसिड पी लिया, नहीं सर मुंह कड़ा हो गया, मैंने बेस पी लिया, वो खेल अभी नहीं चलते, ठीक है। यू हैव टू स्ट्रिक्टली टेक द बबलर, ठीक है, प्रेस इट, होल्ड इट, ठीक है। मान लो ये आपका पिपेट है, आई थिंक पिपेट सबको पता है, ठीक है। पिपेट इज अ लॉन्ग ग्लास ट्यूब, ठीक है। उसके ऊपर आप बबलर लगाते हो, पहले ही प्रेस करके लगा देते हो, ठीक है। देन यू पुट इन द वाटर, ठीक है, एंड देन यू रिलीज इट, ठीक है। सो बबलर सक्सेस से क्या करेगा, लिक्विड खींच लेगा, ठीक है। द मोमेंट उसके ऊपर एक मार्क होता है, उस मार्क के ऊपर आगे लिक्विड, यू हैव टू रिमूव द बबलर, यू हैव टू पुट दिस फिंगर। हमेशा पिपेट को ऐसे ही पकड़ना है, ठीक है, ये नहीं, ठीक है। अगर एग्जामिनर ने आपको ऐसे देख लिया वो करेगा -2, ठीक है, ये अलाउ नहीं है, ठीक है। सबसे पहले ये प्रैक्टिकल में इंपॉर्टेंट होता है पिपेट को ऐसे होल्ड करना, ठीक है। आपके इस थंब के ऊपर पूरा सॉल्यूशन खड़ा होना चाहिए, ठीक है, राइट। फिर अगर आप बोलोगे सर ऐसे करके मैं लेवल एडजस्ट करने कैसे करूँगा, कुछ नहीं, ये 2 फिंगर से आपको ऐसे रोटेट करना है, ठीक है, पिपेट को, ठीक है, राइट। द मोमेंट यू रोटेट दिस वे वो लिक्विड अपने आप एडजस्ट हो जाएगा एंड देन यू जस्ट हैव टू प्रेस दिस, यहाँ से प्रेशर लगाना है वो बंद हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। देन यू टेक इट आउट। सो ये है मेरा पिपेट, ठीक है, राइट। सो ऑलवेज अ पिपेट हैज टू बी हैंडल्ड, ठीक है, इन दिस वे, ओके। ये होता है इसके ऊपर का, ओके। देन ठीक है, ऑन द मिडल देयर इज अ बल्ब, ठीक है, राइट, ये ऐसे होता है बल्ब, ठीक है। देन अगेन इट इज वेरी थिन, ओके। सो इट हैज टू बी होल्ड विद द इंडेक्स फिंगर, ठीक है, राइट दिस, ओके। इसको आप विदाउट इंडेक्स फिंगर से अगर आप थंब से करने जाओगे 2 चीज होगा, थंब से वो पिपेट ब्रेक हो जाता है, ठीक है, ठीक है। सो दिस इज द फर्स्ट केस, ठीक है, ऑफ अंडरस्टैंडिंग हाउ टू पिपेट आउट, ठीक है। देन ये जो आपको दिख रहा है दिस यू नो दिस इज कोनिकल फ्लास्क, ठीक है, टाइट्रेशन के लिए यूज होता है, राइट। देन दिस इज अ वॉच ग्लास, वॉच ग्लास इट्स लाइक दिस थिंग, ठीक है, थिन ग्लास का, ठीक है, ऐसे क्या होता है जिसके ऊपर हम नॉर्मली वेइंग करते हैं
उस सॉल्ट्स को जो हाइग्रोस्कोपिक होते हैं, राइट? नाउ आई थिंक बाय नाउ यू नो व्हाट इज मीन बाय हाइग्रोस्कोपिक सॉल्ट्स। हाइग्रोस्कोपिक मतलब और सुना है, सुना सा लग रहा है, नहीं? हाइग्रोस्कोपिक सॉल्ट, अच्छा नमक अगर हम खुला छोड़ देंगे क्या होगा? वेट हो जाएगा ना, मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है? हाँ होता है, घर पे करके देखना, अभी बारिश का मौसम है, ठीक है? थोड़ा सा नमक, ठीक है, एक इसमें निकाल के, ठीक है, किसी स्मॉल में निकाल रख दो, जो आपको ड्राई फ्री फ्लो है सॉल्ट, नेक्स्ट यू विल गेट इट वेट, वो मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेता है। उससे भी ज्यादा कोई सब्सटेंस होते हैं जो ऐसे निकाले आप, ठीक है, द मोमेंट यू टेक इट आउट वो वेइंग करते करते लिक्विड हो जाते हैं, ठीक है? वन सच एग्जांपल इज NaOH। तो ऐसे सब्सटेंस को हम वॉच ग्लास पे वेइंग करते हैं, नहीं तो नॉर्मल ड्राई सब्सटेंस वी यूज एंड बटर पेपर या फिर कोई पेपर में वेइंग हो जाता है, ठीक है? देन दिस इज अ बीकर। नाउ बीकर तो सबको पता है, ठीक है? मैं आस्क यू कि इस चीज को बीकर ही क्यों बोलते हैं? बीकर हैंडल किया है ना? नहीं दिया नहीं कभी? हाँ, रेपुटेशन बहुत खराब होगा, ये तोड़ देते करते, हाँ, लेकिन पता तो है। अच्छा इसको बीकर क्यों बोलते हैं? उसको बीक होता है, ठीक है? हिंदी और इन मराठी लैंग्वेज दिस इज नोन एज चंचू पात्र, दैट इज ठीक है, द बीक ऑफ अ बर्ड, ठीक है? इट हैज गॉट अ बीक, देयरफॉर इट इज अ बीकर, ठीक है? देन द नेक्स्ट पार्ट, ठीक है, दिस इज अ राउंड बॉटम फ्लास्क, ठीक है? ये आपको डिस्टिलेशन यूनिट में काम में आता है, ठीक है? इट इज लाइक दिस, अ लार्ज यू नो 100 ml या 150 ml का, इसको बोलते हैं राउंड बॉटम फ्लास्क। ये फर्स्ट टाइम बनाने की महारत या स्किल जो है, इट वाज डन बाय एंटनी वॉन लेवाइजर, याद है ना वो, ठीक है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास वाला, ठीक है? देन राइट, दिस इज थर्मामीटर, ठीक है, राइट? दिस इज अ मेजरिंग सिलेंडर, ये है कंडेंसर यूनिट। इंपॉर्टेंट है डिस्टिलेशन यूनिट में, जब इसके ऊपर आप, ठीक है, कंडेंसर यूनिट लगाते हो, ठीक है, बाय यूजिंग अ रबर कॉर्ड, ठीक है, राइट? you apply the you use the condenser unit, ठीक है? ओके, सो यहाँ पे, ठीक है, when you apply and condenser unit, ठीक है, कंडेंसर यूनिट को दो, इस आउटर जैकेट को दो होते हैं, दैट इज होल्स, ठीक है? सो ऑलवेज इनलेट इज फ्रॉम द डाउन एंड आउटलेट इज फ्रॉम द टॉप, ठीक है? ये होता है कंडेंसर यूनिट, दिस वन, ये दिख रहा है ना, ठीक है? सो आपका इनलेट पानी का हमेशा यहाँ से होगा और आउटलेट ऊपर से होगा। व्हाई? बिकॉज जब ये पानी नीचे से अंदर जाएगा, इट विल गो लाइक दिस, ठीक है, फिर इसको सर्कुलेट करेगा, ठीक है, एंड देन इट विल कम आउट, ठीक है, फ्रॉम द अदर एंड, वो कूलिंग के लिए यूज होता है, ठीक है? देन द नेक्स्ट वन इज दिस इज ग्लास फनल, ये है ब्यूरेट, ठीक है, रबर कॉक्स, इसको बोलते हैं सिलिका क्रूसिबल, ठीक है, दिस इज मॉर्टर एंड पिसल, वायर मेश, पेयर ऑफ टॉन्ग्स, ठीक है, स्टैंड, ठीक है, दिस आर ऑल, दिस इज बंसन बर्नर, इसको बोलते हैं क्ले ट्रायंगल। सो ये आपको धीरे धीरे आपको प्रैक्टिकल्स में यूज होंगे, ठीक है? और इसके ऊपर ज्यादा क्वेश्चंस है नहीं, सो जस्ट गिवन योर इंट्रोडक्शन हाउ दिस आर यूज्ड और फॉर द पर्पस, ठीक है? नाउ जस्ट गिव द हेडिंग केमिकल मेथड सेमी माइक्रो एनालिसिस और एक लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स लिख देना, ठीक है? दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन को हमेशा ब्रैकेट में लिखते हैं, क्यों? हाँ पता है? यस, कभी भी आप, हाँ नहीं, why we write always the oxygen in bracket? सारे एलिमेंट्स टेस्ट करने के लिए टेस्ट है सिवाय ऑक्सीजन, इसको टेस्ट नहीं कर सकते, या रिएक्ट ज्यादा करता है एंड उसका लेकिन डिटेक्शन का टेस्ट नहीं कुछ भी, ठीक है? सो राइट डाउन दिस एलिमेंट्स व्हिच आर टेस्टेड क्वालिटेटिवली, ठीक है?
सॉल्यूशन मतलब ग्रुप से निकलेंगे जो सारे एजेंट्स नहीं, फ्लोरीन छोड़ के, फ्लोरीन आपको हाथ में नहीं देंगे, ठीक है, बहुत धमाके करता है वो, ठीक है, राइट। मतलब फ्लोरीन के पास इतना कैपेसिटी है, वो ये सारे ग्लासेस को तोड़ सकता है अगर वो लेयर एक बार मतलब फॉर्म हो गया। आई थिंक यू माइट बी अवेयर कि ये कांच पे जो एचिंग करते हैं ना, नाम वगैरह लिखते हैं, राइट, इट इज डन बाय हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, ठीक है, वो कांच को भी डिसॉल्व करता है। नॉर्मली सारे ग्लासेस हम कांच यूज करते हैं, सो नन ऑफ द एलिमेंट्स रिएक्ट टू द ग्लास एक्सेप्ट ये फ्लोरीन, बहुत नोटोरियस है, ठीक है। फ्लोरीन के बाद आता है नंबर ब्रोमीन का, ठीक है। ब्रोमीन तो आपको ग्रेजुएशन, फ्लोरीन और ब्रोमीन ग्रेजुएशन लेवल तक आपके हाथ में नहीं देंगे, ठीक है, एक्सेप्ट द कॉलेजेस, ठीक है। यू माइट हैव सीन मी समटाइम्स वेयरिंग द ब्लैक एडिडास जैकेट, एक दो शुरू में पहन उसकी यहाँ पे देख लेना, आपको रफू दिखेगा, ब्रोमीन बना रहे थे, ब्रोमीन वाटर, वो जो फुटा है सिर्फ ऐसा ये किया तो इधर से, ठीक है, वो कॉलर और ये लेके सिर्फ 2 बूंद गिरी है, एंड माय दिस चिक वाज इचिंग फॉर गुड 15 डेज। सोचा तो व्हाई माय चिक इज इचिंग, ठीक है। देन दिस वेंट लिटिल बिट डार्कर, वो ब्रोमीन का एक ड्रॉप लग गया था वहाँ पे, ठीक है। ये दोनों हैलोजन, फ्लोरीन और ब्रोमीन जो है ना, हाइड्रोक्लोरिक से तो डरते हैं, मतलब धुआं निकलता है, डेंजरस दिखता है, बहुत सेफ है बंदा, बट फ्लोरीन हड्डियों तक जला देता है, मतलब अगर गलती से हाथ पे गिरा तो वो पूरा मस्त ये गया और सिर्फ हड्डी रहेगी, ठीक है, होता है एक्चुअली। हाँ, ये आपको पता होगा, आई डोंट नो, यू आर वेरी यंग, आपको ये एग्जाम्पल दो कि नहीं पता, ठीक है, बट यू नो क्या कहीं ना कहीं आपको मिला ही होगा। देयर वाज दिस टर्किश क्या बोलते हैं, क्रिटिक, जो मतलब ये कहते हैं ना, गलत बोलते हैं, द डेथ ऑफ जमाल खशोगी, ठीक है, राइट। वो ही वाज अरब नेशनल, वो अरब कैलिफेट के अगेंस्ट बहुत गलत दिखता था और बाद में सऊदी छोड़ के भाग गया, उसको टर्की में पकड़ा और हिंदी के लिए मैंने रिजॉर्ट इन एचएफ, ठीक है, सीक्रेट एजेंट्स, या इट इज दैट डेंजरस, ठीक है। सो ये सारे केमिकल्स बहुत रेस्पेक्टफुल, इनको लैब में जाने के पहले, ठीक है, राइट, यू हैव टू मेक श्योर दैट ये सारे बंदों को रेस्पेक्ट देना है, ठीक है, इट बी इट हाइड्रोक्लोरिक, सल्फ्यूरिक, ठीक है। आपके पास जितने भी केमिकल्स है, दे आर डिजाइन्ड सच ए वे, अगर कुछ भी होता है, कहीं पे लगता है कुछ होता है, सबसे पहले होल्ड योर हैंड अंडर द वाटर, ठीक है, दैट्स द फर्स्ट आंसर, ठीक है, एक्सेप्ट फॉर द सोडियम, ठीक है, वो करोगे तो उल्टा और धमाका कर देगा, ठीक है, राइट। सो लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट, ठीक है। सो दिस इज द केमिकल मेथड्स फॉर एन क्वालिटेटिव एनालिसिस, ठीक है। इन दिस मेथड्स, ठीक है, a quantitative analysis of both are given, organic and inorganic, ठीक है। So for this, these are the few, ठीक है। So chemical methods of quantitative analysis involves organic compounds and inorganic, मैं बात कर रहा हूँ अभी quantitative की, ठीक है। So अगर मैं organic की बात कर रहा हूँ तो determination of percentage constituents of element, कितना परसेंट कार्बन है, ये आज हम देखेंगे if we go smoothly, ठीक है, सॉल्विंग न्यूमेरिकल्स में पता चलेगा, ठीक है, कि कितना परसेंट कार्बन है, कितना हाइड्रोजन है, ठीक है। देन अगर दोनों का मिला के 100% नहीं हो रहा है, 100% बाकी का ऑक्सीजन है, ठीक है। देन डिटर्मिनेशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ए नोन कंपाउंड्स इन गिवन सैंपल, जैसे मान लो, ठीक है, आपको मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ, दिस आई एम गिविंग एन एग्जांपल फ्रॉम द फाउंड्री डेज, ठीक है। फाउंड्रीज ये बनाते, मैंने कहा ना, ये मेटल का बनाते। सो अगर मान लो ये शेप आपको बनाना है, ठीक है, सो व्हाट दे डू, आपको पता है शेप्स कैसे फॉर्म करते हैं, जनरल आइडिया है? आई डोंट नो, आई थिंक डाउट है। हां, ट्यूब से वो मेटल निकालते और Right. जगह होते प्रेस करते हैं इन सर्टेन शेप। तो वो मशीन्स का जो पार्ट है दैट कम्स इन एन फॉर्जिंग, ठीक है, आपको अभी पता होना चाहिए, उसको बोलते हैं फॉर्जिंग, और दूसरा होता है डाइंग। फॉर्जिंग में क्या करते हैं, कोई भी मान लो आपने लेट्स से ये मेटल का पीस ले लिया ऐसे, ठीक है, इसको आपने इसमें रेड हॉट किया तो मेटल थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा, जब ये रेड हॉट हो जाएगा तो इसको प्रेस कर देंगे, जो चीज़ सही हो, तो इसको मतलब रेड हॉट से आप प्रेस किया तो आपने इसका डिश बना दिया, ठीक है। बट मान लो थोड़ा थिक और हेवी, लेट्स से गाड़ी का गियर बॉक्स बनाना है, ठीक है, गियर बॉक्स मतलब जो दो टायर के बीच में ठंडा लगता है ना, उसको गियर बॉक्स बोलते हैं, ठीक है। नाउ यू हैव टू मेक दैट, वो इतना मोटा थिक होता है,
ठीक है, ऑलमोस्ट 4 से 5 सेंटीमीटर इतना थिक होता है। उसको कैसे बनाते हैं, दे मेल्ट द मेटल एंड देन दे यूज अ डाई, ठीक है। अभी डाई का कंफ्यूजन होता है, हम सोचते हैं कलर, ठीक है, बट डाई मतलब डाई कास्ट, ठीक है। ऐसा बड़ा बॉक्स होता है, उसके अंदर एक होल बनाते हैं एंड अंदर, उसके अंदर से आपको जो शेप चाहिए, ठीक है, दे पुट इट दैट, ओके। इमेजिन करो कि आपको ट्रक का टायर का जो बीच वाला रिंग है ना वो बनाना है, ये अच्छा मोटा होता है, तो मेल्ट द मेटल, जितना चाहिए कार्बन सब ऐड करते हैं और फिर उस मेल्ट को इसमें से डाल देते हैं, ठीक है। दैट मेल्ट गोज, ठीक है, एंड गेट फिल्ड अप इन दिस कैविटी, और वो रिंग शेप का बाद में सीधा वो नॉक ऑफ करना है और सैंड को तोड़ तोड़ के दिखा देना है, यू गेट द रिंग, ठीक है। अब इस सैंड में आपको देखना है कि कितना परसेंटेज पानी है, बिकॉज अगर उसके अंदर ज्यादा मॉइस्चर हुआ, वो सैंड उस मेटल के साथ रिएक्ट होके पूरा बर्बाद, ठीक है। अगर कम मॉइस्चर हुआ तो जैसे ही मेटल मेल्ट डाला वो ब्रेक हो जाएगा और पूरा मेटल बाहर लीक हो जाएगा, एक्सीडेंट हो जाएगा। नाउ द फर्स्ट इज कि परसेंटेज वाटर डिटेक्ट करना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे बोला है ना, डिटर्मिनेशन ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए नोन कंपाउंड, तो पानी तो नोन कंपाउंड है, हमें देखना है कि उस सैंड में पानी कितना है। सिंपल टेस्ट है, ठीक है। वी टेक दिस वाटर, ठीक है, और इसको रिएक्ट करते हैं कैल्शियम कार्बाइड, ठीक है, ओके। यू गेट द फॉर्मेशन ऑफ CaOH ट्वाइस प्लस C2H2, ठीक है, ये गैस बनता है, ठीक है। ये C2 है, ये H2 है, ठीक है, एंड देन आपको लगेंगे, ठीक है, दैट इज ट्वाइस, ठीक है। सो दिस विल बी द बैलेंस पार्ट। नाउ ये पूरा रिएक्शन जो है, ठीक है, राइट, दिस इज कैरिड आउट इन वन स्पेशल डिवाइस, ऐसे शेप का होता है, ठीक है, बिल्कुल लैंटर्न की तरह, ठीक है, राइट। इसके अंदर आप थोड़ा सैंड डालते हो, ठीक है, राइट, जो भी आपको टेस्ट करना है वो, एंड ऊपर से यहाँ से खोल के, ठीक है, वी ऐड कैल्शियम कार्बाइड, ठीक है, राइट। उसका एक वेट दिया होता है, कुछ 5 ग्राम ऐड करना होता है, ठीक है, पर 10 ग्राम ऑफ दी, ठीक है, सैंड, ठीक है। और जो आपको एसिडिक गैस बनेगा वो जस्ट क्लोज करके और शेक इट, ठीक है, तुरंत ये डायल पे, ठीक है, यहाँ पे रीडिंग्स होते हैं कैलिब्रेटेड, ठीक है, आपको पता चल जाता है कि कितना एसिडिक गैस बना, ठीक है। जितना गैस बना उसको हम कन्वर्ट करते हुए यूनिट डेंसिटी एंड वी कंप्यूट कि उसमें मॉइस्चर कितना है। अभी एडवांस इसमें तो डायरेक्टली वो डायल पे यही दिखा देगा कि कितना परसेंटेज मॉइस्चर है, अगर 20% के ऊपर गया, ठीक है, तो उस डायल को वापस हीट करके पानी उड़ा देते हैं, ठीक है। सो व्हाट आई एम गिविंग एन एग्जांपल कि कैसे कंसंट्रेशन ऑफ ए नोन कंपाउंड डिटरमाइन होता है इन केस ऑफ ऑर्गेनिक, और सैंड तो ऑर्गेनिक है। अभी सैंड में नॉन पानी कितना है, दैट इज यूज्ड बाय दिस वन ऑफ द एग्जांपल, अंडरस्टूड दिस, ठीक है। जस्ट राइट डाउन दिस पार्ट, ठीक है, जस्ट ये दो तो आपको पता है, ठीक है, ग्राविमेट्रिक एंड टेट्रीमेट्रिक। हाँ, वो एलिमेंट्स जो हमने अभी देखा ना, ठीक है, राइट, दैट इज कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, वो डिटेक्ट भी करना है और उसका कितना परसेंटेज है। तो याद है मैंने एग्जांपल दिया था स्पेक्ट्रोमीटर का, 10 सेकंड में 14 एलिमेंट्स, सो वो परसेंटेज कांस्टेंट ऑफ एन एलिमेंट। तो वैसे ही सल्फर, ठीक है, कितना सल्फर है, सल्फर डिटेक्ट कर दिया, उसके लिए टेस्ट होता है स्टार्च ऑर्डर टेस्ट, आपको ब्रिलियंट वॉलेट ब्लू कलर, बैक का कलर है ना, वैसे कलर का आपको प्रेसिपिटेट मिलता है। फिर आप उसी में वो 10 ग्राम वे करते हो, वही रिएक्शन कैरी करते हो, जितना ग्राम प्रेसिपिटेट मिला उसके ऊपर आप बोलते हो कि इतना सल्फर है, ठीक है। सो दैट आर द वे डिटरमिनेशन ऑफ एन परसेंट कांस्टेंट ऑफ एन एलिमेंट।
डन। ठीक है, yes, can we move now? ठीक है, this is our important aspect of this whole chapter analytical chemistry में। ठीक है, यहाँ तक हमने देखा कि what is meant by qualitative analysis, semi micro qualitative and semi micro qualitative analysis, ऑर्गेनिक में क्या क्या करते हैं, ठीक है, एंड इनऑर्गेनिक में हम क्या क्या करते हैं। ठीक है, राइट। नाउ मैथमेटिकल ऑपरेशन एंड एरर एनालिसिस, जो भी हमें डेटा मिलता है, जो भी रिजल्ट्स मिलते हैं, वी गेट सम नंबर्स, उन नंबर्स को मिनट लगाते हैं एंड देन वी से दैट दिस इज माय ऑब्जर्व डेटा। ठीक है, कई बार ये डेटा इट कम्स विद द एरर। ठीक है, राइट। अब ये जो एरर है, ठीक है, इट इज ऑफ टू टाइप। ठीक है, राइट, दैट इज एब्सोल्यूट एरर एंड द रिलेटिव एरर। सो बिफोर गोइंग फॉर द एरर, ठीक है, यू शुड नो द डिफरेंस बिटवीन द टू। एक है प्रिसिशन, दूसरा है एक्यूरेसी। ठीक है, सो दिस टू इमेज आई हैव पर्पसफुली एडेड, ठीक है, टू अंडरस्टैंड, ठीक है, व्हाट इज मीन बाय मेजरमेंट्स। ठीक है, आप जब भी लैब में जाओगे, ठीक है, राइट, और मोस्टली आपका वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशन ही होगा। ठीक है, वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशन का रूल क्या है, राइट, वो मैं बताता हूँ। सो अभी आपको वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशन पता है कि आपको दो सॉल्यूशंस होंगे, एक आपको कोनिकल फ्लास्क में लेना है, द अदर वन इज योर टेक इट इन अ प्यूरेट। ठीक है, कोनिकल फ्लास्क वाले में इंडिकेटर डालने हैं 2 ड्रॉप एंड यू हैव टू टाइट्रेट। ठीक है, अब ये जब टाइट्रेशन करते हो, सबसे पहले तो आपको दिक्कत आती है कोनिकल फ्लास्क होल्ड करने के लिए, बिकॉज यू आर नॉट ट्रेन टू होल्ड दैट फ्लास्क। ठीक है, उस फ्लास्क को अगर मान लो ये फ्लास्क है, उसके नेक पे रखिए और टू होल्ड इट लाइक दिस। ठीक है, वो आपको टीचर आपके बता देंगे। ठीक है, एंड व्हेन यू होल्ड दिस फ्लास्क लाइक दिस, take this mouth, you have to hold it under the tube, that is burette, and you have to keep on swirling. ठीक है, अब ये जब हम करते हैं, we try to check how much volume is taken out. ठीक है, so I'll just show you, ठीक है, in a best possible way. ठीक है, ठीक है, now this is some of the arrangement is it is like this. ठीक है, आप पहले क्या करते हो, you take some let's say strip it out करके लिक्विड लोगे कोनिकल फ्लास्क में। ठीक है, एंड देन, ठीक है, ब्यूरेट में आपका एक लिक्विड होगा। ठीक है, राइट, एंड ये लिक्विड जैसे आप ये नॉब ओपन करोगे, ठीक है, दिस लिक्विड विल कम डाउन इनटू दिस कोनिकल फ्लास्क।
शुरू में क्या हो जाता है, यू टेक टोटल 4 रीडिंग्स, ठीक है। यू टेक द फर्स्ट रीडिंग जिसको बोलते हैं पायलट रीडिंग, ठीक है। पायलट रीडिंग जो है, ठीक है, इट इज ऑलवेज रिपोर्टेड एज इन द रेंज, लेट्स से आपका रीडिंग आना चाहिए था 10 ml, ठीक है। सो पहला रीडिंग आप रिपीट करोगे कि लाइक इट इज कमिंग बिटवीन, ठीक है, दैट इज 9.5 to 10.5, ठीक है, इस रेंज में आपका रीडिंग आ रहा है, दिस वाज पायलट रीडिंग। सो योर टीचर जस्ट सर्कल्स इट एंड डू इट लाइक दिस, ठीक है। सो ये हो गया कि हाँ यू आर इन अ राइट रेंज, ठीक है। क्या 9.5 और 10.5 का एवरेज 10 है, ठीक है। देन शी आस्क्स यू ओके गो अहेड परफॉर्म योर एक्सपेरिमेंट। सो देन यू टेक द फर्स्ट रीडिंग, ठीक है। सो फर्स्ट रीडिंग आपको आएगा मान लो 10.1 ml, ठीक है, राइट। देन यू टेक द सेकंड रीडिंग, ठीक है, आपको आ गया 10.2 ml, ठीक है। फिर देन यू गो फॉर द थर्ड रीडिंग और आप बिना परफॉर्म किए लिख देते हो 10, ठीक है, राइट। नाउ द टीचर हु हैज डन द टाइट्रेशन, उसको पता है कि पहला 10.1, दूसरा 10.2 और तीसरा 10.4 जाने वाला है, बिकॉज़ मॉलिक्यूल्स रिएक्ट होते रहते हैं, ठीक है। बट व्हाट यू डू, आप प्रेजुडिस लगाते हो कि 10.1 है, 10.2 है, तो 10.1 ही होगा तीसरा, कौन करते बैठेगा, लिख दो, चलो। यू आर इन अ बैच ऑफ ऑलमोस्ट 60 या 70 रहोगे, ठीक है, राइट। एवरीवन विल नॉट कम एट योर टेबल टू चेक। इसको बोलते हैं प्रेजुडाइज, ठीक है, कि मेरा 2 रीडिंग का 10 और 10.2 आया है, तीसरा रीडिंग में लिख देता हूँ, ठीक है। और यही पे आता है एरर, ठीक है। सी, इसके लिए बोलते हैं प्रिसिशन एंड एक्यूरेसी। आप 4 बार रीडिंग करो, आपका चारों बार रीडिंग अगर एग्जैक्ट 10.1 आया, दैट मींस यू आर हाई ऑन प्रिसिशन, ठीक है। एक्यूरेसी का मतलब है हाउ फार यू आर फ्रॉम द ट्रू वैल्यू, ठीक है। सो व्हेन यू से अ प्रिसिशन, ठीक है, राइट, सो जो कोई आप रीडिंग लोगे उसका ये चीज बहुत जरूरी है, ठीक है, राइट, कि प्रिसाइज, आप प्रिसाइज हो कि नहीं, ठीक है। एक्यूरेसी तो आपके हाथ में है नहीं, ठीक है। शूटिंग किस किसने किया है, एनीवन शूटिंग किया? नहीं, स्पोर्ट्स नहीं लिया था, शूटिंग में कभी नहीं गए, राइफल या कुछ स्कूल नहीं, हाँ, काफी महंगा भी है थोड़ा सा, एक बुलेट 250 रुपए की आती है उसकी, ठीक है, राइट। और शूटिंग रेंज शायद इट इज ओनली वन, दैट इज इन आवर कॉलेज इन डोंबिवली, ठीक है, पेंडरकर। सो नाउ शूटिंग में, ठीक है, राइट, व्हेनेवर यू शूट, योर टीचर और द गाइड विल ऑलवेज आस्क यू कि रिपीट करो, ठीक है। मतलब आपने एम ले लिया, ठीक है, हाउ केयरफुल यू आर इन गेटिंग दैट एम परफेक्ट अगेन, ठीक है, दैट मींस शी विल आस्क यू फॉर प्रिसिशन। यू मे और मे नॉट हिट द बुल्स आई, ठीक है, बट यू विल बी ट्रेन्ड फॉर द प्रिसिशन। सो प्रिसिशन इज डिफाइंड एज, ठीक है, एन एबिलिटी, ठीक है, टू रिपीट द एक्सपेरिमेंट और एबिलिटी टू रिपीट, ठीक है, द वैल्यू, ठीक है, और वी कैन से एक्सपेरिमेंट। बिल्कुल जैसे फर्स्ट बार टाइम किया वैसे आप सेकंड टाइम कर पा रहे हो कि नहीं, ठीक है, दैट इज प्रिसिशन, और इसके लिए ही सबसे ज्यादा स्किल होता है, ठीक है। नाउ एक्यूरेसी, ठीक है, एक्यूरेसी मतलब, ठीक है, एज यू कैन सी फ्रॉम द इमेज इट इज हिटिंग द बुल्स आई, ठीक है, इट इज द मेजर ऑफ, ठीक है, इट इज द मेजर ऑफ, ठीक है, डिफरेंस, it is the measure of difference, ठीक है, between what we call it as an observed value and true value, ठीक है। आपने जो वैल्यू लाया है एक्सपेरिमेंट का वो ट्रू वैल्यू से कितना दूर है, दैट इज एक्यूरेसी इन वर्ड्स, ठीक है, राइट। सो आपका आना चाहिए था परफेक्ट रीडिंग 10, आपका आया 10.1, ठीक है। सो योर एक्यूरेसी इज 0.1 यानी 1% अवे फ्रॉम द ट्रू वैल्यू, ठीक है, राइट। सो ये एक्यूरेसी लाना बहुत जरूरी है। अभी एक्यूरेसी कब आती है, ठीक है, वो आती है विद द हाई प्रिसिशन, ठीक है। सो इसीलिए कहते हैं हाई प्रिसिशन, ठीक है, इज द प्रीरिक्विजिट मतलब, ठीक है, प्री कंडीशन, प्रीरिक्विजिट, ठीक है, ऑफ हाई एक्यूरेसी, ठीक है। आप एक्यूरेट हो कि नहीं ये तो
बाद में पता चलेगा, बट आप कितना सटीक तरीके से वो रिपीट कर रहे हो, ठीक है, 96 98% अगर आप कितना बार बार ला पा रहे हो, दैट डिफाइंस योर प्रिसिशन, ठीक है। सो ऑलवेज वर्क फॉर द प्रिसिशन। एक्यूरेसी इंप्रूव की जा सकती है, ठीक है, राइट, कुछ एरर होगा, ठीक है, डूइंग द मैथमेटिकल कैलकुलेशन, कुछ ना कुछ, ठीक है। सो हाई प्रिसिशन इज अ प्रीरिक्विजिट फॉर द एक्यूरेसी, ठीक है, राइट। सो दिस आर द टू डेफिनेशंस, ठीक है, फॉर द प्रिसिशन एंड द एक्यूरेसी, ठीक है। इसको ये भी बोलते हैं क्लोजनेस ऑफ अ वैल्यू टुवर्ड्स द ट्रू वैल्यू, ठीक है। तो जस्ट गिव द हेडिंग मैथमेटिकल ऑपरेशन एंड एरर एनालिसिस, ठीक है। देखो डेफिनेशन ये भी लिखो चलेगा, दैट विल आल्सो गिव द मार्क्स, ठीक है। जो इजी लगता है यू कैन राइट डाउन दैट। ठीक है। So okay, this is about precision and accuracy of measurement. ठीक है। So when we say precision and accuracy, so aim of any experiment to get the actual value for true value or accepted value of a quantity. कई बार आप जब टाइट्रेशन करते हो, ठीक है, हो सकता है कि द टाइट्रेशन इज डिजाइन कि आपको वैल्यू है 10 ml एग्जैक्ट, ठीक है, बट ड्यू टू एन एरर, वो ब्यूरेट में कुछ एरर हो सकता है, ठीक है, और ड्यू टू एन एरर इन दैट पिपेट यू मे गेट ऑलवेज रीडिंग एज 10.2 या 10.3, ठीक है। सो ट्रू वैल्यू था 10 और एक्सेप्टेड वैल्यू क्या होगा 10.3, मतलब आपका वैल्यू अगर 10.3 भी आता है, ठीक है, दैट मींस यू विल बी गेटिंग द फुल मार्क। तो कभी बोलते हो ना कि प्रैक्टिकल में मैंने मार्क्स इतने क्यों काट दिए, फिर तो एग्जैक्ट रीडिंग रिपीट हुए थे, सब कुछ हुआ था, ठीक है।
कई बार आप जो रीडिंग रिपीट कर रहे हो देयर विल बी सम एरर, ठीक है, राइट, जो क्रिप इन हो गया है, ठीक है, एंड दैट एरर हैज डिडक्टेड योर मार्क्स। तो इसके लिए जब भी आप लैब में जाओ, ठीक है, द फर्स्ट थिंग, ठीक है, यू शुड डू इन अ लैब इज ऑनेस्टी, ठीक है। आपका जो रीडिंग आ रहा है, जो कंडीशंस आ रहे हैं, रिपोर्ट कर दो सीधा। यू डोंट थिंक कि वेदर यू आर राइट और रॉन्ग, यू आर देयर टू परफॉर्म एन एक्सपेरिमेंट। आपका काम उतना ही है। मैं गया, मैंने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया प्रॉपर्ली, जो मेरे गाइडलाइंस थे मैंने सुने, एंड आई डिड इट एंड आई केम आउट, ठीक है। बिकॉज अगर आपने रीडिंग 10 प्री पकड़ के चला कि नहीं ये रीडिंग 10 ही आना चाहिए और आपने 10 लिख दिया और बाकी सबका रीडिंग का 10.5 है, तो एवरीवन इज राइट एंड यू आर रॉन्ग, ठीक है, राइट, बिकॉज सबका रीडिंग 10.5 रिपीट हो रहा है, ठीक है। दैट मीन्स ओवर द फुल क्लास इज डूइंग इट इन अ पे, फिर वो एग्जैक्ट चुन के आ जाते हैं कि इसने कुछ तो गड़बड़ किया है, ठीक है। देन दे विल आस्क यू, एक बार रिपीट करो तो फिर से आपने झूठ बोला, देन शी विल कम एंड सी ऑब्जर्व कि एग्जैक्ट आप बराबर लिख रहे हो। द मोमेंट शी ऑब्जर्व्स कि नहीं आपका रीडिंग कुछ तो ये है, गलत है, ठीक है, वहाँ से मार्क्स रिडक्शन चालू, दे डोंट से यू कि आपने गलत किया है, ठीक है, राइट, इज नॉट डिस्क्लोज, राइट। सो द फर्स्ट थिंग व्हेन यू एंटर द लैब, एक मान के चलो कि आप राइट या रॉन्ग करने नहीं आए, यू आर जस्ट केम टू लिसन टू द इंस्ट्रक्शन एंड डू द एक्सपेरिमेंट एज इंस्ट्रक्टेड, उतना ही काम है। खत्म करो और लेट जस्ट मूव ऑन, ठीक है। नाउ राइट, नेक्स्ट इज द पार्ट ऑफ एन साइंटिफिक नोटेशन, ठीक है, राइट। ये एक्सपोनेंशियल नोटेशन पार्ट हमें बहुत जरूरी है, ठीक है। व्हाट इज मेन बाय एंड साइंटिफिक नोटेशन, ठीक है। द बेस्ट एग्जांपल कैन बी अवोगाड्रो नंबर, ठीक है, राइट। सो इट इज ओके एक्चुअली दिस वैल्यू, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, ठीक है, राइट, 19 20.00, ठीक है, इतना बड़ा है ये नंबर, ठीक है। हम कैसे लिखते हैं, ठीक है, वी शिफ्ट दिस डेसिमल, ठीक है,